تقریباً 2 ماہ رہ گئے ہیں۔ کورونا وائرس اور معاشی بحالی کے علاوہ جو ایک موضوع اس وقت بہت اہمیت کا حامل ہے وہ ہے نسلی تعصب کا خاتمہ اور نسلی انصاف کی فراہمی۔ مئی کے مہینے میں سیاہ فام شہری جارج فلوئڈ کی پولیس کی حراست میں ہلاکت نے ملک گیر مظاہروں کو جنم دیا، جنہیں دنیا بھر میں دیکھا گیا اور بعض ملکوں میں لوگ ان کی حمایت میں سڑکوں پہ بھی نکلے۔ تب سے اب تک امریکہ کے مختلف شہروں میں سیاہ فام شہریوں کے خلاف پولیس کے تشدد کے کچھ اور واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں۔ ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انصاف کے مطالبے کے ساتھ جب لوگ باہر نکلے تو مظاہروں میں تشدد اور لوٹ مار کے واقعات بھی رونما ہوئے، جس سے یہ پوری بحث ہی بہت پیچیدہ ہو گئی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم ان کی دوبارہ جیت یقینی بنانے کے لیے لا اینڈ آرڈر کے موضوع کو خاص طور پہ اجاگر کر رہی ہے، لیکن مخالفین کا کہنا ہے کہ صدر ایک سماجی بحران پہ سیاست کر رہے ہیں۔ اس بحث کے مختلف پہلو آئیے دیکھتے ہیں آج کے شو کی پہلی رپورٹ میں۔ ریپبلکن نیشنل کنونشن میں ایک امیر سفید فام جوڑے کو دکھایا گیا جن کی وائرل ہونے والی ایک تصویر میں وہ جون میں سینٹ لوئس میں اپنے گھر کے سامنے بلیک لائیوز میٹر نامی تنظیم کے مظاہرین پر بندوق تانے کھڑے تھے۔ Not a single person in the out of control mob you saw. ہمارے گھر کے سامنے بے قابو ہجوم میں سے کسی ایک پر بھی کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کسے ملزم قرار دیا گیا؟ ہم پر فرد جرم عائد کی گئی ہے کہ ہم نے اپنے گھر کی حفاظت کرنے کی جرات کی۔ استغاثہ نے ان پر اسلحے کی غیر قانونی استعمال کی فرد جرم عائد کی ہے۔ یہ واقعہ ٹرمپ مہم کے اس دعوے کو اجاگر کرتا ہے کہ نسلی انصاف کے لیے کیے جانے والے مظاہرے بڑھ رہے ہیں اور امن عامہ کے لیے ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہے۔ اسی ہفتے ریاست وسکانسن کے شہر کنوشا میں اس وقت مظاہرے شروع ہو گئے جب اتوار کے روز ایک سفید فام پولیس افسر نے ایک سیاہ فام شخص پر اس کے بچوں کی موجودگی میں گولیاں چلا دی۔ مظاہرین نے شہر کے مرکز میں کاروباروں کو لوٹا اور انہیں آگ لگا دی۔ بدھ کی صبح 3 افراد کو گولی لگی جس میں سے 2 ہلاک ہوئے اور ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے بقول ان کے نظام میں موجود نسلی امتیاز کو ختم کرنے کے لیے پولیس اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے پرتشدد مظاہروں کی مذمت کرتے ہوئے پولیس پروگرامز کے فنڈ میں کمی کے لیے کی جانے والی کاوشوں کی بھی مخالفت کی ہے۔ اس کے باوجود ریپبلکن کنونشن سے خطاب کرنے والے مقررین نے جو بائیڈن اور ان کی پارٹی پر سیاہ فام امریکیوں کی حمایت کے لیے پرتشدد، انتہا پسندوں کی حمایت اور پولیس کی مخالفت کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ وہ قانون نافذ کرنے والے امریکی نظام کو برباد کر کے اسے درہم برہم کریں گے اور اس کے فنڈز ختم کر دیں گے۔ جب آپ مصیبت میں ہوں اور آپ کو پولیس کی ضرورت ہو تو پھر ڈیموکریٹس پر تکیہ نہ کریں۔ لا اینڈ آرڈر عرصے سے ریپبلکن پارٹی کے لیے فتح حاصل کرنے کا موضوع رہا ہے۔ صدر رچرڈ نکسن کی 1968 کے انتخابات میں کامیابی کی ایک وجہ ایک ایسے وقت پر ان کا امن عامہ کے تحفظ کا وعدہ بھی تھا جب ملک بھر میں نسلی اور ویتنام مخالف مظاہرے پھوٹ پڑے تھے۔ تاہم لبرل حلقوں اور ڈیموکریٹس کے مطابق بطور صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جاری کشیدگیوں سے خود کو بری الذمہ نہیں ٹھہرا سکتے۔ وہ موجودہ صدر ہیں اور اگر اس وقت انتشار پھیلا ہوا ہے تو الزام انہی پر آئے گا۔ صدر ٹرمپ پر قانون نافذ کرنے والوں کے استعمال کے لیے بھی تنقید ہوتی رہی ہے۔ جون میں وفاقی حکومت کے اہلکاروں نے وائٹ ہاؤس کے باہر پرامن مظاہرین کو زبردستی منتشر کرنے کے لیے پیپر اسپرے کا استعمال کیا تھا۔ اس سے تھوڑی دیر بعد صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے نکل کر سڑک کے پار گرجا گھر گئے تھے تاکہ ایک بائبل ہاتھ میں لے کر تصویر بنا سکیں۔ صدر ٹرمپ نے دیگر امریکی شہروں میں بھی جہاں پولیس کا مظاہرین کے ساتھ تصادم ہوا تھا فیڈرل فورسز کو بھیجا تھا۔ تجزیہ کار میٹ گروسمن کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کا لا اینڈ آرڈر پر دوبارہ سے زور افریقی امریکی شہریوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کی اپنی کوششوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ جرم سے سختی سے نمٹنے کی روایتی پالیسی کی جانب واپس لوٹنا یہ ایک بڑی تبدیلی ہے۔ جبکہ ڈیموکریٹس کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کورونا کی عالمی وبا کو کنٹرول کرنے میں اپنی انتظامیہ کی ناکامی سے توجہ ہٹانے کے لیے امن و امان کے ایشو پر زور دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ان کی حکمت عملی ملک میں نسلی تعصب کی بنا پر پھیلی بے چینی کا رد عمل ہے۔ برائن پیرن کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ اب ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے پارٹی کنونشنز کے میگا ایونٹس تو مکمل ہو چکے ہیں۔ ووٹرز کے لیے دونوں جماعتوں کا کیا پیغام رہا اور یہ ایک دوسرے سے کتنا مختلف ہے، اسی بارے میں نے وائس آف امریکہ کے نمائندہ اسٹیو ویڈج سے کچھ دیر پہلے بات کی۔ اسٹیو، ہم نے دونوں کنونشن دیکھے، دونوں بڑے ایونٹ سے ختام پذیر ہو چکے ہیں۔ یہ بتائیے کہ دونوں پارٹیوں کا پیغام ایک دوسرے سے کتنا مختلف ہے؟
दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को मुस्तकबिल के लिए खतरा साबित करने की कोशिश कर रही हैं। पिछले हफ्ते डेमोक्रेट्स ने सदर के कोरोना वायरस वबा के रिस्पांस और नस्ली इंसाफ पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया था। रिपब्लिकन्स ने इस हफ्ते उन मुजाहिरों में होने वाले हंगामों के कुछ वाकयात को ये साबित करने की बुनियाद बनाया कि जो बाइडेन अमरीकी शहरों को गैर महफूज बना देंगे। दोनों ही कन्वेंशंस का पैगाम ये है कि अगर आप दूसरे शख्स को वोट देंगे तो आप अमेरिका का मुस्तकबिल तारीख कर देंगे, और दोनों ही एक दूसरे को ऐसे दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आपने दूसरे के लिए वोट किया तो आप अमेरिका को गैर महफूज बना देंगे। रायनामा के जायजे दिखाते हैं कि जो बाइडेन सदर ट्रंप से आगे हैं, लेकिन जब हम मखसूस सवालात जैसे माशी बहाली की बात करते हैं तो फिर सदर ट्रंप पर लोगों को ज्यादा भरोसा है। तो जो हम इलेक्शन के करीब जा रहे हैं, पोल्स वोटर्स और इन कैंपेन्स के लिए कितनी अहमियत रखते हैं? इस वक्त वोटर और कैंपेन्स दोनों ही के लिए ये देखना जरूरी है कि उनका उम्मीदवार कहां खड़ा है। इस वक्त रियल क्लियर पॉलिटिक्स और 538 के जमा करदा पोल्स जो बाइडेन को तकरीबन 7 पॉइंट्स आगे दिखा रहे हैं। बहुत से लोग इन पोल्स पर भरोसा नहीं कर रहे क्योंकि वो कहते हैं कि 2016 के इलेक्शन से पहले किए जाने वाले राय आमा के जायजे गलत साबित हुए थे। असल में उनमें कुछ सदाकत भी थी। पोल्स ने कुछ अहम रियासतों में हिलरी क्लिंटन की जीत की पेशेनगोई की थी, मगर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए पाई जाने वाली हिमायत को शामिल नहीं किया, जिससे सदर को इलेक्टोरल कॉलेज जीतने में मदद मिली और वो इलेक्शन जीत पाए। पोल्स करने वालों ने अपने तरीकेकार में तब्दीली तो की है, मगर लोगों को पोल्स पर इतना एतमाद नहीं। कन्वेंशन के दौरान तो दोनों उम्मीदवार अपने अपने कैंप्स में थे, लेकिन जल्द ही उनका सामना होगा। तो हमें बताएं कि क्या अहम मौके आ रहे हैं जिन पर तवज्जो देनी होगी। अगला बड़ा इवेंट दोनों उम्मीदवारों के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा है, जो 19 सितंबर को रियासत ओहायो में होगा। इस रियासत में जीतने वाला उम्मीदवार 1964 से लेकर अब तक सदर का इंतखाब जीतता आ रहा है। कैंपेन्स की नजरें सितंबर 19 और 20 पर भी लगी हुई हैं, क्योंकि इन दिनों में 7 रियासतों में सदारती इलेक्शन के लिए कबल अज वक्त वोटिंग शुरू हो रही है। तो सितंबर का तीसरा हफ्ता बहुत अहम है, क्योंकि मजीद रियासतें 3 नवंबर से पहले ही वोटिंग का सिलसिला शुरू कर देंगी। अमेरिका में जारी इंतखाबी सरगर्मियों के दिलचस्प और अहम पहलुओं के बारे में मजीद जानने के लिए आप जब चाहें लॉग ऑन कर सकते हैं urdu.voa.com पर, और इसके अलावा facebook.com/VOA उर्दू का पेज भी हम हर वक्त आपके लिए अपडेट करते रहते हैं। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। इस माह कराची में इतनी बारिशें हुई हैं कि माजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए, और मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले इस शहर में कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। सूबाई हुकूमत ने रेन इमरजेंसी तो नाफिज की, लेकिन वो लोग जिनके घरों में पानी आ चुका है, जिनकी अमलाक को नुकसान पहुंच चुका है, उनकी मदद के लिए कौन आ रहा है? इसी बारे में हमारी साथी सिद्रा डार ने शहरियों से भी बात की और हमें सूरत हाल से आगाह कर रही हैं। आप जरा बताइए, यहाँ पे कहाँ रहती है, किस तरह? आगे थल्ले पे रहती हूँ, इस रोड पे रहती हूँ। बहुत डूबा हुआ है इलाका, देखो ना कैसे डूबा हुआ है। 3-4 दिन से बच्चे फंसे पड़े, वहाँ से सामान बहन भाइयों से लाई तो ले जाऊंगी बच्चों के लिए अपने। यहाँ पे कोई मदद के लिए आया आप लोगों की? कोई भी नहीं आया अभी तक, तो कोई भी नहीं आया हमारे मदद को। अपने मदद आप है। घरों में देखिए बारिशों का लोग पानी पी रहे हैं। अभी एक गिलास मैंने पानी मांगा कि नहीं, हमारे पास पानी नहीं है। यानी कि यहाँ के लोग इंसान नहीं है क्या? हुकूमत कहाँ है हमारी? जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, दिखावा करते हैं, करोड़ों की कुर्बानियाँ करते हैं, वो आके इन लोगों को साथ दे ना। कहाँ बैठे हैं वो लोग? कुत्तों तक पानी है, घरों में भी है, खाना लिया है घर के लिए, नुकसान बहुत हुआ है। तो सारे सामान का खराब हो गया, फर्नीचर तो बिल्कुल ही खराब हो चुका है। बर्तन भारे बच्चे हैं, वही लेके जा रही हूँ मैं अपने घर बस, और कुछ भी सब बर्बाद हो चुका है। ये पानी निकल सकता है, संजीदा हो ना लोग तो पानी निकल सकता है मैडम। ये रहा बरसाती नाला खाली है, यहाँ से मशीनें लगे, वहाँ खींच दिया जाए, आदमी कल अपने घरों को आ जाए। अपने घरों में, दूसरों के घरों में रह के कब तक लोग अफोर्ड करेंगे हमें? कितने सारे लोग हैं यहाँ से, खानदान है जो जा चुके हैं? 150 से 200 घर हैं यहाँ जो चले गए हैं। रातों को अपनी सेफ्टी के लिए मकान में जो बचा कुचा रह गया उसके लिए एक आदमी रुकता है।
नहीं तो चोर आगे वो भी ताले काट के ले जाते हैं। मॉनसून की बारिशों का ये सिलसिला जो हुआ है, इसमें कराची में रिकॉर्ड बारिश हुई है। अगस्त के महीने में अमूमन महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जाता है कि 60 से 70 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस वक्त जो कराची में सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड टूटा है वो 345 मिलीमीटर बारिश शारा फैसल पे रिकॉर्ड की गई है, जो कि अगस्त का रिकॉर्ड है, जो कि तकरीबन कहा जा रहा है कि 90 साल के बाद टूटा है। जबकि महकमा मौसमियात इस हवाले से पहले ही पेशगोई कर चुका है कि इस बारिश के बाद एक और सिस्टम बनेगा जो सिंध से होता हुआ कराची में दाखिल होगा और 30-31 को इम्कान है कि फिर बारिशें होंगी। ये मानसून की बारिशों का सिलसिला सितंबर तक जारी रहेगा, मुख्तलिफ सिस्टम्स आते रहेंगे और हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल जो कराची में बारिशें हुई हैं वो बहुत ज़्यादा तबाही के मंजर पेश कर रही हैं। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है आजाद सहाफत से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आजाद सहाफत अहम है। कोविड-19 के खिलाफ दुनिया की जंग तो जारी है, लेकिन इस मरज का शिकार होने वाले अफराद की मुश्किलें इसे शिकस्त देने के बाद भी खत्म नहीं होती। यही वजह है कि डॉक्टर्स ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ये कोरोना वायरस मुख्तलिफ लोगों को इतने मुख्तलिफ तरीके से मुतासर करता है। आइए इस वक्त आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जिसे कोरोना वायरस के बाद नई जिंदगी तो मिली, लेकिन ये जिंदगी नॉर्मल नहीं हो पा रही। अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर डैलस के एक अस्पताल में 13 हफ्ते गुजारने के बाद स्टीफन डोनाल्डसन आखिरकार घर जा रहे हैं, जहां पड़ोसी उनके इस्तकबाल के मुंतजिर हैं। लेकिन कोविड-19 के खिलाफ उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हाथों से काम लेना आसान नहीं, इसमें से कोई भी आसान नहीं रहा है। स्टीफन डोनाल्डसन के लिए कोविड-19 से सेहतयाब होना मुश्किल था, क्योंकि 2 साल कबल उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था और जब वो कोरोना वायरस का शिकार हुए तो उस वक्त वो मुदाफियती निजाम के रद्द-ए-अमल को दबाने वाली अद्वियात ले रहे थे। डॉक्टरों ने इन दवाओं में बस इतनी कमी की कि स्टीफन का निजाम वायरस के खिलाफ लड़ सके। उन्हें दवाएं देकर सुलाया गया ताकि मशीनें अपना काम कर सकी। उनकी जान बचाने की कोशिश में डॉक्टरों को इस वायरस के बारे में मजीद इल्म हुआ। कोविड-19 के मरीजों के लिए ये एक बहुत अनोखा मामला है और मेरे ख्याल में इसकी एक वजह ये है कि ये हमारे लिए सीखने का एक तजुर्बा रहा है। ये डॉक्टरों के लिए एक जज्बाती तजुर्बा रहा है, क्योंकि उन्हें फैसला करने में गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है और उन्हें हर चीज बहुत जल्दी सीखना है। डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने स्टीफन डोनाल्डसन पर प्रोनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसमें मरीजों को उल्टा लिटाया जाता है। इस दौरान स्टीफन दिन में 16 घंटे इसी पोजीशन पर रहते थे। मिस्टर स्टीफन की देखभाल करते हुए हमने कुछ थेरेपीज इस्तेमाल की हैं, जो हम आमतौर पर इस किस्म की सांस की तकलीफ के इलाज के लिए इस्तेमाल करते थे। लिहाजा निमोनिया के मरीजों की देखभाल के लिए हमारी एक तकनीक पेट के बल लिटाना है। वक्त गुजरने के साथ डॉक्टरों का कहना है कि उनके ऑक्सीजन की सतह में इजाफा हुआ और वो सेहतयाब होकर घर लौटने के काबिल हुए। मरियम दयालु की रिपोर्ट के साथ नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में ही थिएटर्स और सिनेमा हॉल्स बंद करवा दिए। अब पाकिस्तान में तो इनकी रौनकें बहाल हो रही हैं, लेकिन अमेरिका के बाज़ हिस्सों में या तो सिनेमास और थिएटर्स को मुकम्मल तौर पर खोला नहीं गया अब तक, या फिर लोग भी एहतियात करते हुए यहाँ जाने से गुरेज कर रहे हैं। तफरीह और सेहत को एक साथ लेकर चलने की कोशिश में अब बाज़ थिएटर्स स्टेज पे परफॉर्म करने के बजाय खुले आसमान तले सीन सेट कर रहे हैं और लोग भी सीटों पर बैठने के बजाय अपनी गाड़ी में बैठे बैठे ये परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं। अब ऐसा तरीका सिनेमाज में तो माजी में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन थिएटर्स के लिए ये तजर्बा कुछ नया है। ये कैसा होता है, आइए चलते हैं एक ड्राइव थ्रू थिएटर में। My name is Taylor Juno, and this is the teardrop from the orange sky. No, it isn't like it at all. यार मुझे आपको बताना पड़ा कि दूसरे दिन ज़ेफ फ्लेचर की क्लास में क्या हुआ। मेरा मतलब है ये पागलपन है।
तो ड्राइव थ्रू ड्रामा ये इस डिज्नी राइड की तरह है, मगर खौफनाक एनिमेशन के बगैर। ये हर अदाकार के पास ड्राइव होकर जाती है और रुकती है। ये एक जिंदा अदाकार है। ये खुद कलामी करते हैं जहाँ 10 स्टेशन मौजूद हैं और ये मिलकर एक कहानी बनाते हैं। I came across something I had learned about in theater history. मैंने थिएटर की तारीख में जिस चीज के बारे में सीखा था उसे करूने वस्त के पेशेंस वैगन्स कहते हैं। वो उस वक्त आम था जहाँ अदाकार एक गाड़ी पर होते हैं और वो अपने सीन करते हैं और फिर ये अगले शहर या शायकीन के अगले ग्रोह के पास चले जाते हैं। तो मैंने उसी आइडिया पर काम करते हुए उसे पलट दिया, जहाँ अदाकार एक जगह पर रहता है और फिर सामने ड्राइव करते हुए बाकी कहानी सुनते हैं। I was a banker. Part of my job was I would sort through the money and decide if money couldn't be used anymore. It's in the game, okay? All right, I think we gotta cut our losses, like try to outlast till maybe second place and then. We've never done anything like this before. हमने पहले कभी ऐसा नहीं किया और मैं वाकई ही इसका मुंतजिर हूँ। हम दोनों ही थिएटर को पसंद करते हैं और बराह रास्त थिएटर जाने और देखने का कोई भी मौका जाया नहीं करते। मैं बहुत पुरजोश था क्योंकि इस साल कुछ इतना नहीं हुआ। जब डैनियल मेरे पास आया और कहा मैं एक शो करना चाहता हूं, तो मेरा जहन खुद कलामी की किस्म के ड्रामों की तरफ चला गया। मेरा जहन ऐसे ड्रामों की जानिब गया जो रवायती तौर पर एक वक्त में एक शख्स के जरिए सुनाए जाते हैं। एक शख्स का शो लेकिन 10 से ज्यादा अफराद पर मबनी। और मैंने सोचा कि शायद 10 मुख्तलिफ कहानियां करना मुमकिन है जो एक ही चीज से जुड़ी हो, जो इस मामले में $1 का बिल है जिस पर कुछ तहरीर है। Make a small change and those sound like pretty big changes to me now. Yes, I am going to cue you. हाँ, मैं आपको इशारा दूंगा तो ये कार दूसरे अदाकार के पास चली जाएगी। वो सिर्फ चंद लम्हों में वहाँ पहुँचेगी। मैं इसको तेज करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि पीछे कोई मौसीकी ना हो। मैं आपको वहाँ इसका इंतजार करने दूंगा। इख्तिताम पर वो सर झुकाकर दाद वसूल करेंगे। आपके पास थोड़ा सा तालियां बजाने का मौका होगा और इसके बाद आप वहां से अगले मुकाम पर चले जाएंगे। Sweet dreams. Thank you. शुक्रिया 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 कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का, अपनी सेहत खतरे में डालकर काम जारी रखने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का शुक्रिया। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों का, फलाई इदारों और रजाकारों का, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखने वाले असातिज़ा का शुक्रिया। हुकूमती अहलकारों का, सहाफियों का और आप सबका, क्योंकि हम सब मिलकर इस वबा को हराएंगे। वाइल्ड लाइफ पार्क्स और चिड़ियाघरों में नजर आने वाले मोर, फेजेंट्स और दीगर रंग बिरंगे परिंदे दिल तो बहुत लुभाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये आते कहाँ से हैं? लाहौर के वाइल्ड लाइफ पार्क्स में मसनूई अफजाइश नस्ल के मराकज़ मौजूद हैं। यहाँ आम लोगों का जाना तो मना है, लेकिन समन खान का कैमरा हमें दिखाएगा कि अंदर होता क्या है। लाहौर के जल्लो पार्क में कायम मरकज़ी अफजाइश नस्ल के इंक्यूबेटर रूम में मोर, फेजेंट्स और दीगर परिंदों के अंडों को एक खास दर्जा हरारत पर गरमाया जा रहा है, जिसके बाद इन्हें हैचर में रखा जाएगा जहां बच्चा खोल तोड़ कर बाहर आता है। नन्हे परिंदे हैचिंग रूम में 1 माह तक रहते हैं, जहां मसनूई माहौल में उनकी नशोनुमा की जाती है। वाइल्ड जो बर्ड है, फेजेंट है और पीफॉल है, इनका जो इंक्यूबेटिंग टेम्परेचर हम सेट करते हैं वो अराउंड अबाउट 100 डिग्री होता है और ह्यूमिडिटी 45 to 60 तक होती है। फौरन हम एग लेके उधर उनको कर देते हैं, इंक्यूबेटर में लगते हैं। अब फेजेंट और पीफॉल का इंक्यूबेशन पीरियड डिफरेंट होता है। फेजेंट का है वो 24 डे है और पीफॉल का है 28 डे। 24 डे पे फेजेंट के एग जो रखे हुए थे वो हैच होना शुरू हो गए। उनको हम ब्रूडिंग के लिए अलग जो हमारा कंपार्टमेंट है उसके अंदर शिफ्ट कर देते हैं। ये एक सबर अजमा काम है। जनवरी के अवाइल से ही परिंदों के जोड़े बनाने का काम शुरू हो जाता है, जिसके बाद मार्च से जुलाई तक अंडों का मौसम होता है। इस दौरान इंतजामिया को 200 से 300 अंडे रोजाना हासिल हो जाते हैं। चूजों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए उनकी वैक्सीनेशन भी की जाती है और मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं, मगर आजाद फिजा में उड़ना इन सब की किस्मत में नहीं।
यहाँ पे जो ब्रीड होते हैं ये बच्चे जो हम ये दूसरे पार्कों में भी शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे भी ज़रूरत होती है। और ये साल में एक ट्रॉफी हंटिंग भी होती है, 500-600 बर्ड वहाँ पे भी लगता है। तो ट्रॉफी हंटिंग के लिए भी हम जो है सारे फेजन जो हैं यहाँ से भेजते हैं। सफारी ज़ू लाहौर में परिंदों की एक बड़ी एवरी है, जिसमें मौजूद मुख्तलिफ रंगो नस्ल के 200 से ज़ायद परिंदे यहाँ आने वालों की तवज्जो का मरकज बनते हैं। ये पार्क भी परिंदों की अफजाइशी नस्ल में खुद कफील है। मुतबादिल स्टॉक बरकरार रखने के अलावा निजी सेक्टर को फरोख्त करके मुनाफा भी कमाता है। जिस तरह कुदरती माहौल में परिंदों की जिंदगी इंसानी आंख से बड़ी हद तक ओझल रहती है, इसी तरह अफजाइश नस्ल के इन सेंटर्स में भी इन्हें लोगों की चहल पहल से दूर ही रखा जाता है। पब्लिक का जब स्ट्रेस आता है ना तो फर्टिलिटी बहुत लो हो जाती है, क्योंकि डिस्टर्बेंस पैदा होती है, उनके बिहेवियर जो होता है वो भी एबनॉर्मल हो जाता है। इसीलिए फिजेंट्री अलग आपको बनानी पड़ती है हट के पब्लिक एरिया से, कि वहाँ पे जो है ना मिनिमम जो है ना वो इंटरफेरेंस हो पब्लिक की। इसलिए जब ये तरह बड़े हो जाते हैं, ज़रा इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें ज़रा बड़े एडल्ट बर्ड्स के साथ, कम से कम 6-7 महीने बाद जो होता है ना फिर हम वो करते हैं। मतलब कि अगर आप अभी देखेंगे ना तो दिसंबर के राउंड बाद जो है ना फिर हम इनको शिफ्ट करेंगे। अफजाइश नस्ल के ऐसे प्रोग्राम नायाब और मादूम होते परिंदों का वजूद बरकरार रखने का अहम जरिया है, क्योंकि ये परिंदे खत्म हो गए तो कुदरत का बनाया तवाजुन बिगड़ भी सकता है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया एक मरतबा फिर जंगलात की आग से लड़ रही है। पिछले कई दिनों से फैली हुई इस आग में रियासत के शिमाली हिस्से में तकरीबन 1.5 मिलियन एकड़ रकबे को तबाह कर दिया है। इससे बहुत से लोगों के सरों से उनकी छत तो छिन गई है, साथ ही जानवरों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है, जिनके पास अब कोई महफूज ठिकाना नहीं। आइए मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो इन जानवरों को रेस्क्यू कर रहे हैं। डिलन नामी 7 साल अरबी घोड़े को सोनोमा काउंटी की एक पनाहगाह में उन दीगर जानवरों के साथ रखा गया है जिन्हें कैलिफोर्निया में जंगलों की आग से बचाया गया। ये पनाहगाह रज़ाकारों की मदद से चलाई जाने वाली गैर मुनाफा बख्श तंजीम कार्ट ने कायम की है, जिसकी सरबराह डॉक्टर एम्बर बावर हैं। has helped over 1,400 animals. सोनोमा कार्ट तंजीम ने इस आफत के दौरान 1,500 जानवरों की जान बचाई, जिसमें कुत्तों और बिल्लियों के अलावा घोड़ों, बकरियों, मुर्गियों और भेड़ों समेत कई दीगर अक़साम के जानवर शामिल हैं। कम्युनिटी एनिमल रिस्पांस टीम यानी कार्ट सोनोमा काउंटी के साथ मिलकर कोशिश करती है कि काउंटी के जिन फार्म्स में आग भड़क रही है वहां मौजूद जानवरों को बचाया जाए। यहाँ इन जानवरों को आग से बहुत दूर सायादार पनाहगाह फराहम की जाती है। रिकॉर्ड गर्मी की वजह से भड़कने वाली इस आग में सोनोमा और मुत्तसिल इलाकों में 3.5 लाख एकड़ जमीन को जलाकर राख कर दिया है। इससे पहले के इलाके से इनखला के अहकामात जारी किए जाते, डिलन की मालिका 76 साल सैंडी उसे यहाँ ले आई। You call them, they're very calm, they're very cool. आप इन्हें कॉल करें तो ये बहुत तहम्मुल से आपकी बात सुनकर आपके जानवरों को यहाँ लाने के इंतजाम करते हैं। अगर आपको इलाके से निकलना हो तो वो जानवरों का ख्याल रखते हैं। ये किसी गनीमत से कम नहीं है। आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका, लेकिन इन जानवरों के पास ये महफूज ठिकाना मौजूद है जिसे वो अपना घर समझकर आजादाना घूम सकते हैं। फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। प्रोग्राम में शामिल रिपोर्ट दोबारा देखने और उनके बारे में अपनी राय हमें देने के लिए आइए facebook.com/VO उर्दू के पेज पर, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हम आपके लिए हाजिर हैं। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।